Hello students, this is our second video in the International Relations UGC NET PYQ video series. In this video series, we will be covering all the PYQs asked by UGC NET from 2014 up till June 2025 for each topic. So the second topic which we are taking up is the approaches. This is the part 2 of the approaches related to international relations. So the first question was asked in November 2017. This is a match the following question. We have to match the authors with their corresponding books. So एंड्रू लिंकलेटर ने लिखी थी, इन सब में से he had written the transformation of political community. Next, F. Clark, he had written hegemony in international studies. उसके बाद Kenneth Owe, he had written cooperation under anarchy. And the last one, J. Ann Tickner, she had written gendering world politics. Okay, these are very famous books, so you should try to remember these for the upcoming examinations. The next question which was asked in November 2017 was, this is again a match the following question, और इसमें we have to match the doctrines, जो different US presidents के doctrines थे, we have to match them with what they actually meant. ठीक है, तो जैसे निक्सन डॉक्ट्रिन दिया है, the first one. निक्सन डॉक्ट्रिन was basically it was a goal established by Richard Nixon to ensure peace and partnership with different allies. तो यूएसए के जो भी allies हैं उनके बीच उनके साथ में पीस और पार्टनरशिप बनाने के लिए they had come up with this Nixon doctrine. Next is Kennedy doctrine. So Kennedy doctrine basically was a foreign policy initiative towards Latin America. ठीक है, so Kennedy doctrine basically dealt with the international relations between USA and Latin America. Next is Reagan doctrine. So Reagan doctrine was basically aimed at supporting anti-guerrilla movements. ठीक है, and the last one is Clinton doctrine. Clinton doctrine was basically an intervention to prevent genocide. ठीक है, next question November 2017 का है. Who was of the opinion that survival depends on a state's material capabilities and its alliances with other states? ठीक है, तो this was a statement said by Kenneth Waltz. ठीक है, so he was basically a foundational thinker of neo-realism, या उसको हम structural realism भी कहते हैं. According to him, in anarchic international system, जो कोई भी स्टेट होता है उसका सर्वाइवल इज जनरली पैरामाउंट. ठीक है, एंड सर्वाइवल ऑफ अ स्टेट इज जनरली सिक्योर्ड वाया इट्स ओन पावर. पावर मतलब मटेरियल कैपेबिलिटीज. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है और ये केनेथ वॉल्ट्स ने दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए एंड वी आर सपोज टू मार्क द करेक्ट वंस. First है, new realism and neoliberalism are rationalist approaches. ठीक है, so this is a correct statement. ठीक है, new realism and feminism are reflectivist approaches. तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, जो बेसिकली इंडियन पॉलिटिकल थॉट को इंटरनेशनल पॉलिटिकल थॉट को 2 में कैटेगराइज करते हैं हम लोग, रैशनलिस्ट थ्योरीज एंड रिफ्लेक्टिविस्ट थ्योरीज. ठीक है, तो रैशनलिस्ट थ्योरीज का क्या असम्पशन होता है कि जो सारे इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, जो कंट्रीज वगैरह हैं, दे आर रैशनल एक्टर्स. ठीक है, विच आर बेसिकली एम टू मैक्सिमाइज देयर इंटरेस्ट.
तो बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे सारे कंट्रीज काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द रैशनलिस्ट थ्योरीज, ठीक है। वेर एज रिफ्लेक्टिविस्ट थ्योरी होते हैं, दे बेसिकली फोकस अपॉन नॉर्म्स, आइडेंटिटीज एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। तो क्या बेसिक डिफरेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू रैशनलिस्ट थ्योरीज ऑल द इंटरनेशनल एक्टर्स आर rational, therefore they aim to maximize their interest. Whereas in reflectivist theories बहुत सारे आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, नॉर्म्स, आइडेंटिटीज इनके ऊपर दे आर बेस्ड, ठीक है। सो रैशनलिस्ट थ्योरीज की एग्जांपल्स हैं न्यूरियलिज्म, लिबरलिज्म, whereas reflectivist थ्योरी की एग्जांपल्स हैं फेमिनिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एटसेट्रा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट स्टेटमेंट्स विल बी 1 and 4 ओनली, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2017 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कांटियन इन्फ्लुएंस दैट एक्ट्स एज अ कंस्ट्रेंट ऑन वॉर? इमानुअल कांट का इन्फ्लुएंस नहीं है, नॉट अ पूछा है, that acts as a constraint on me. So I'll just read the statements. The first one is democracies will refrain from using force against other democracies. तो दिस इज अ कांटियन इन्फ्लुएंस, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ट्रेड क्रिएट्स इंसेंटिव्स टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस। हाँ, ये भी सही स्टेटमेंट है, मतलब कांट के रिलेटेड ही है, इमानुअल कांट की थ्योरी से रिलेटेड है। उसके बाद में ग्लोबल सिविल सोसाइटी एग्जर्ट्स इटसेल्फ, नहीं ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, द ग्लोबल सिविल सोसाइटी डज नॉट एग्जर्ट इटसेल्फ, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैन कंस्ट्रेन डिसीजन मेकर्स बाय प्रमोटिंग पीस, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो आई जस्ट रीड द एक्सप्लेनेशन। इमानुअल कांट का जो थीसिस है ऑन परपेचुअल पीस, which is modernized as the democratic peace theory, it identifies three key pillars that together create a virtuous cycle of peace, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आता है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस आता है एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस द थर्ड ऑप्शन विल बी नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2018 का है, दिस इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। We have to match the authors with their respective books, the books which they have written. तो फर्स्ट है स्टीफन क्रासना, तो उन्होंने लिखा था द बुक इंटरनेशनल रिजीम, ठीक है। नेक्स्ट है जे रोजनबर्ग, दे हैड रिटन द बुक एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी। उसके बाद में ई एम वुड ने लिखी थी एम्पायर ऑफ कैपिटल। और लास्ट है बैरी बुजान ने लिखी थी फ्रॉम इंटरनेशनल टू वर्ल्ड सोसाइटी। Please try to remember these books and their respective authors because they might be repeated in the upcoming examination, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2018 का है फिर से, who have argued that far from any objective reality international politics is a world of our making। तो ये किसने बोला? ये कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट का बेसिस है, ठीक है। सो दैट विल बी द आंसर, द फोर्थ क्वेश्चन पॉइंट विल बी द आंसर इसका। आई विल जस्ट रीड द एक्सप्लेनेशन। Constructivism is a major IR theory that posits that the international system is not a given material reality but a social construction. State interests and identities are shaped by shared ideas, norms, and language, meaning reality is what we collectively make of it. ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट्स ऐसे कोई भी मटेरियल रियलिटी नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में, रादर पूरा ही इंटरनेशनल रिलेशंस इज बेस्ड अपॉन नॉर्म्स, आइडियाज, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट होता है रादर दैन मटेरियल, कुछ नहीं है, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट्स, ठीक है। तो द फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जुलाई 2018 का है अगेन, न्यू लिबरल्स फ्रॉम देयर लॉकियन यूनिवर्स seek to create international regimes that optimize the which of the following rational exploitation of nature, हाँ दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो न्यू लिबरलिज्म लिबरल्स का बेसिक कोर आइडिया क्या है? दे बेसिकली वांट लिमिटेड स्टेट इंटरवेंशन। ठीक है, I'll just read the explanation once. Neoliberal institutionalism argues that state can achieve absolute gains through cooperation. International regimes are set of rules and norms created to manage complex interdependence, including the sustainable and rational management of common resources like fisheries, environment and trade. ठीक है, तो इसमें वही है, न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म में क्या रहेगा, दैट जो सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, दे कैन कम टुगेदर इन ऑर्डर टू ensure that the resources present on earth, जो भी resources हैं, they are rationally utilized। ठीक है, तो जैसे ओशंस हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो, उनको ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, या जो हमारा आर्कटिक एरिया है और एंटार्क्टिक एरिया है, जो ग्लोबल कॉमन्स हैं, दे आर यूटिलाइज्ड प्रॉपरली एंड सस्टेनेबली। ठीक है, ये न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का that is one of the core ideas of neoliberal institutionalism. So the first option will be correct. Next है जुलाई 2018 का है अगेन, democratic peace theory has been largely associated with the writings of which of the following scholars. तो democratic peace theory के one major scholar is माइकल डॉयल। ठीक है, उन्होंने माइकल डॉयल एज वेल एज ब्रूस रसेट आर की स्कॉलर्स who belong to the democratic peace theory। ठीक है, सो द सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड आई जस्ट टेल यू, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी बेसिकली इमानुअल कांट के आइडियाज़ पे बेस्ड है। ठीक है, उनका जो परपेचुअल पीस पैम्फलेट था, पैम्फलेट फॉर परपेचुअल पीस, उसके आइडियाज़ पे इट इज़ बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2018 का है, मॉर्गनथाउस क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियोलॉजीज डज नॉट इंक्लूड। तो फोर ऑप्शंस दिए हैं, आई जस्ट टेल यू अबाउट मॉर्गनथाउस थ्री क्लासिफिकेशंस ऑफ आइडियोलॉजीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजीज। द आइडियोलॉजी ऑफ स्टेटस कोइस्ट्स। ठीक है, स्टेटस कोइस्ट मतलब जैसा है वैसे ही चलने देना। ठीक है, जैसे पुराना है हिस्टोरिकली वैसे ही रखना अभी भी, नो चेंज। फिर है द आइडियोलॉजी ऑफ इम्पीरियलिज्म, तो ये हमें पता ही है, वो कॉलोनीज, कॉलोनियलिज्म, ये सब। और थर्ड है द एम्बिगुअस आइडियोलॉजीज विच आर अनक्लियर। ठीक है, तो ये तीन उन्होंने दिए थे। एंड आइडियोलॉजी ऑफ हेजिमनी इज नॉट वन ऑफ हिज क्लासिफिकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2018 का है, विच वन ऑफ द पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो पहला क्या दिया है, रियलिज्म स्टेट्स, ग्लोबलिज्म नॉन स्टेट, हाँ दिस इज करेक्ट। रियलिज्म में स्टेट्स के पावर पॉलिटिक्स के बारे में बात होती है। उसके बाद में ग्लोबलिज्म टॉक्स अबाउट नॉन स्टेट एक्टर्स, ये भी सही है, नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक एमएनसीज एक्सेट्रा। डिपेंडेंसी टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। अच्छा, और लास्ट क्या है, फेमिनिज्म इज अबाउट जेंडर, दिस इज करेक्ट। देखिए, डिपेंडेंसी थ्योरी इज नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स बट ऑल्सो इसमें क्या होता है, कोर और पेरिफेरी, कोर कंट्रीज और पेरिफेरी कंट्रीज में जो भी
पूरा बताया था ना उन्होंने, इमैनुअल वॉलस्टीन वगैरह ने, कि द कोर कंट्रीज ऑफन टेक एडवांटेज ऑफ द पेरिफेरल कंट्रीज, ठीक है। वो दिस इज अ मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट, तो वो बेसिकली ओनली इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे नहीं बेस्ड है, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ क्लास थ्योरी एट्सेट्रा, ठीक है। सो द थर्ड ऑप्शन विल बी नॉट करेक्ट, नॉट करेक्टली मैच पूछा है ना हमें, सो दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट है 43 जुलाई 2018 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। So the first one is The Wretched of the Earth. हाँ, this was a book written by Franz Fanon. This is correct. ठीक है. World Order was written by Henry Kissinger. This is also correct. The third book is Implosion of Capitalism. This was indeed written by Samir Amin. This is also correct. ठीक है. Now the last book is Neocolonialism. So this is wrong. ठीक है. Neo-colonialism, the last stage of imperialism, was written by Kwame and Nkrumah. ठीक है, this was not written by Julius Nyar, so the fourth option will be wrong. Next, December 2018 का है, which of the following statements is not correct? So we have been given four statements here. The idealist approach stresses the role of moral values. So देखिए, दिस इज करेक्ट, आइडियलिज्म में मॉरल वैल्यूज पे फोकस रहता है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। फिर आइडियलिज्म इज एसेंशियली अ वेरिएंट ऑफ लिबरल इंटरनेशनलिज्म, हाँ ये भी सही है। लिबरल इंटरनेशनलिज्म के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो दे आर सिमिलर टू दोज ऑफ आइडियलिज्म। फिर है आइडियलिस्टिक अप्रोच एम्स एट रिफॉर्मिंग इंटरनेशनल सिस्टम। अच्छा, ये भी सही है, दे डू एम एट रिफॉर्मिंग द इंटरनेशनल सिस्टम थ्रू इंटरनेशनल लॉ, हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लास्ट वन इज आइडियलिज्म इज को एक्सटेंसिव विद लिबरलिज्म, नहीं ये गलत है। को एक्सटेंसिव मतलब दे आर नॉट रिप्लेसेबल, दोनों सिनोनिमस नहीं है ये दोनों, दे आर नॉट सिनोनिमस। इंस्टेड उनके दो थोड़े से फीचर्स आर सिमिलर, हाउएवर दे आर नॉट the exact same thing, ठीक है। So the fourth option will be not correct. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, वी हैव टू मैच द बुक्स विद देयर रिस्पेक्टिव ऑथर्स। सो द फर्स्ट बुक इज द 20 years crisis, सो दिस इज अ वेरी सिंपल वन, ये E.H. कार ने लिखा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, दिस इज ऑल्सो सिंपल, दिस वॉज रिटन बाय कार्ल डोश। फिर imperialism, दिस वॉज रिटन बाय जे हॉब्सन, ठीक है। देन द लास्ट वन neo-colonialism, द लास्ट स्टेज ऑफ imperialism, दिस वॉज रिटन बाय क्वामे एंड nkrumah, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, वो यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, बट दैट विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2018 का है, which of the following statements are not correct about the US policy of containment, ठीक है। तो US पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट आपको पता है, दे वर एमिंग टू, जो यूएसएसआर में कम्युनिस्ट सिस्टम था, है ना, कम्युनिस्ट नहीं सोशलिस्ट बोल सकते हैं, सोशलिज्म था, और बाकी सब जगहों पे कैपिटलिज्म वाज देयर, कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म, ठीक है। तो यूएसए का पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट वाज दैट जो यूएसएसआर है उसको हम चारों ओर से वील सराउंडेड विद कंट्रीज विच प्रैक्टिस कैपिटलिज्म एज वेल, ठीक है। तो हर साइड में वही कंट्रीज रहेंगे जहाँ पे यूएसए का इन्फ्लुएंस रहेगा, सो दैट वाज दी पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। सो इसमें क्या क्या दिया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। सो द पॉलिसी वॉज एम्ड एट कंटेनिंग सोवियत इन्फ्लुएंस, दिस इज करेक्ट। Where the US used foreign aid as an instrument of containment, this is also correct। मार्शल प्लान और ट्रूमन डॉक्ट्रिन ये सब उन्होंने यूज़ किया था इन ऑर्डर टू गेट दीज कंट्रीज टू साइड विद यूएसए, ठीक है। थर्ड है
The policy was meant for countering Soviet influence in Eastern Europe only. This is wrong. पूरा वेस्टर्न यूरोप का भी था. ईस्टर्न यूरोप में इनफैक्ट सो यूएसएसआर हैड अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस. वेस्टर्न यूरोप में यूएसए हैड ग्रेटर इन्फ्लुएंस. ठीक है. और बस यूरोप के लिए नहीं था, इट वाज फॉर द इंटायर वर्ल्ड. फिर डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री इंटरवेंशंस वर आल्सो यूज्ड फॉर कंटेनमेंट. दिस इज आल्सो करेक्ट. सो द थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग एंड दैट विल बी आवर आंसर. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2018 का है. Who said that the theories should be judged not by some preoccupied abstract principle or concept unrelated to reality? Theories को कैसे जज नहीं करना चाहिए? By some abstract concepts. Its purpose is to bring order and meaning to a mass phenomenon. So this is a quote-based question. ठीक है, these are very commonly asked nowadays. तो ये कोट था मॉर्गन थाउ का कोट था. ठीक है. ट्राई टू रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी फैक्चुअल और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट आजकल पूछते हैं. ठीक है, कोट बेस्ड क्वेश्चंस. सो दिस वाज सेड बाय मॉर्गन थाउ. नेक्स्ट है दिसंबर 2018 का है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? So the first statement is, following the horrors of First World War, liberal internationalists sought to end war. This is correct. ठीक है. They held that liberal internationalists की बात हो रही है. The liberal internationalists held that the right to self-determination and statehood was impermissible. This is wrong. बिल्कुल opposite statement दिया हुआ है. ठीक है. According to them, असली में जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्टेटहुड होता है, दैट इज़ अ कोर लिबरल प्रिंसिपल. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है? दे वर कन्विंस्ड दैट बैलेंस ऑफ पावर वुड गिव वे टू कलेक्टिव सिक्योरिटी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फिर दे ऑल्सो हेल्ड दैट डिप्लोमेसी वुड बी रिप्लेस्ड बाय कंसेंट. हाँ, ये भी करेक्ट है. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. द आंसर विल बी द सेकेंड ऑप्शन विच इज़ नॉट करेक्ट. नेक्स्ट है जून 2019 का क्वेश्चन है. When diplomacy ends, war begins. So who had said this? So this was a statement given by Adolf Hitler. ठीक है. Again this is a quote based question, और you have no other option but to remember these, और ऐसे बार बार रिवाइज करिए तभी याद होगा ये. फिर है जून 2019 का क्वेश्चन है. Which of the following is the full title of the book written by Morgenthau? ठीक है. सो उन्होंने बुक लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग्स नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस. ठीक है. हमारा आदत होती है कि हम लोग वील जस्ट लर्न द पहले वाला पोर्शन, बस पॉलिटिक्स अमंग नेशंस हम बोल देते हैं. हाँ, मॉर्गनथाउ का है, बट लुक एट दिस क्वेश्चन. इन्होंने पूरा बुक का नाम पूछा हुआ है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द थर्ड वन. नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 का है. Which of the following two statements are correct regarding the Chinese policy of theory of palm and the five fingers? ठीक है. सो theory of the palm and the five fingers का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. According to this theory, China believes that जो भी ये palm में जो भी areas आते हैं, that is Chinese areas. ठीक है. तो एक तो जो पाम है वो है टिबेट. ठीक है. वो उन्होंने ले लिया. ठीक है. उसके बाद में जो 5 फिंगर्स में से एक फिंगर है वो है लद्दाख की. द नेक्स्ट फिंगर इज़ फॉर नेपाल, थर्ड फिंगर सिक्किम, फोर्थ भूटान एंड फिफ्थ अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ जो वहाँ पे पॉलिसी मेकर्स है, अकॉर्डिंग टू देम they aim to get all of these areas under their control. तो उनका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है ना, उसके अंडर ये आता है. वो if we look at the options, it includes Bhutan and Nepal. हाँ, this is correct. It includes, हाँ ये भी करेक्ट है. नहीं, मिजोरम मणिपुर नहीं है, और त्रिपुरा और नागालैंड भी इंक्लूडेड नहीं है. सो द करेक्ट आंसर विल बी 1 and 2 ओनली. फिर इसका एक्सप्लेनेशन आई विल जस्ट रीड इट. जो 5 फिंगर्स एंड पाम का जो थ्योरी है, दैट इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू माओ.
ठीक है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन है, which among the following scholars propounded the systems approach towards the study of international relations? तो this is a very simple question. हम लोगों को लगेगा कि we'll have a tendency to mark David Easton, but David Easton was not for IR. It was C. McClelland, who had propounded systems approach for international relations. ठीक है। नेक्स्ट है which one of the following is not the core issue related to neo-realist theory of international relations? ठीक है, तो core issue नहीं है, वो हमें बताना है, not. So actors react in an anarchical environment, this is correct. ठीक है, फिर distrust and fear among actors creates problem of security dilemma, this is also correct. Security dilemma is a concept of neo-realism. The states are always engaged in the process of monopoly capitalism. This is wrong. देखिए कहीं पे भी ऐसे कोई भी डेफिनेटिव फ्रेज आता है ना, ऑलवेज, ओनली, डू नॉट, ऐसे कुछ भी डेफिनेटिव सा आता है, तब आप, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट द स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। इवन इन एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी एट्सेट्रा दिस हैपेंस अ लॉट। ठीक है, तो इसमें बोला स्टेट्स आर, नहीं, ऑलवेज एंगेज नहीं होते हैं। ठीक है, so this is a wrong statement. Where structure is a major determinant of actors' behavior. This is correct, and this is indeed a characteristic, मतलब उनका एक फीचर है न्यू रियलिज्म में, ये कोर प्रिंसिपल है। ठीक है, so the correct answer for this will be the third option, which is wrong. नेक्स्ट है which of the following are correct with regard to neo realism in international politics? तो पहला है इंटरनेशनल एनार्की नेसेसरली टेंड्स टूवर्ड्स टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर, दिस इज करेक्ट। तो हमें पता है कि जो वर्ल्ड स्टेज है वहाँ पे एनार्की है एक्चुअली। ठीक है, इवन दो वी हैव सर्टेन इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस एट्सेट्रा, बट दे डू नॉट हैव एनी बाइंडिंग पावर्स, नहीं है। ठीक है, तो कोई भी बाइंडिंग पावर्स नहीं है, तो देर इज essentially anarchy in the world, और इन इस anarchy की वजह से there are a lot of tensions, conflicts and a lot of possibility of war as well. Next है international anarchy results in a system of self help. हाँ हाँ, दिस इज करेक्ट। ठीक है, सेल्फ हेल्प एंड national interest are some things which are due to the presence of international anarchy. ठीक है, नेक्स्ट है conflict is encouraged by the fact that states are primarily concerned about maintaining their position relative to states, other states. This is also correct. देखिए क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट, जैसे अगर यूएसए है, इट सीज दैट चाइना इज गेनिंग पावर ओवर टाइम। ठीक है, चाइना का मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी बढ़िया होते जा रही हैं, ये सब हो रहा है इकोनॉमिकली, इट इज़ ऑल्सो डूइंग क्वाइट वेल। ठीक है, तो क्या होगा, यूएसए विल बिकम इनसिक्योर। ठीक है, इनसिक्योर होगा, सो इट विल ट्राई टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, जस्ट सो दैट उसको थोड़ा पीछे, उसका जो भी ग्रोथ है उसको कम कर सके। ठीक है, टू कर्ब द ग्रोथ कॉन्फ्लिक्ट विल बी क्रिएटेड। तो ये सही है, कॉन्फ्लिक्ट इज इनकरेज बाय द फैक्ट दैट दे आर एम्ड एट मेंटेनिंग देयर पोजीशन रिलेटिव टू अदर स्टेट्स, मतलब यूएसए चाहेगा कि उसकी पोजीशन बेटर रहे चाइना से हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है द सिक्योरिटी डिलेमा कैन बी कॉल्ड एज बिल्डिंग अप स्टोर्स ऑफ मिलिट्री वेपन्स फॉर ऑफेंस, दिस इज रॉन्ग। सिक्योरिटी डिलेमा ये थोड़ी ना कुछ भी लिख दिया है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सिक्योरिटी डिलेमा होता है उसमें बेसिकली ऑफेंसिव पर्पसेस के लिए नहीं करते हैं, डिफेंसिव पर्पसेस के लिए करते हैं। ठीक है, एंड द स्टेटमेंट इटसेल्फ इज रॉन्ग एज वेल. So the correct answer for this will be A, B and C only. So that is the first option. ठीक है, नेक्स्ट है केनेथ वॉल्ट्स वॉज अ, ये हमें पता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज न्यू रियलिस्ट। ठीक है, ही वॉज अ न्यू रियलिस्ट स्कॉलर। नेक्स्ट 2023 का क्वेश्चन है द आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट
in international relations proposed to replace balance of power by which of the following? So idealism में क्या they propound disarmament, non-violence ये सब ठीक है, तो disarmament will be the right option. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 21 का है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट regime theory in international politics? ठीक है, so the first statement is it is an attempt for the existence of rule governed behavior in the anarchic international system. ठीक है, दिस इज करेक्ट. ठीक है, रिजीम थ्योरी में क्या होता है, रूल गवर्न बिहेवियर को प्रमोट करते हैं इन द केस ऑफ एनार्की. नेक्स्ट क्या है, दे आर टू रिप्लेस द कलेक्टिव. नहीं, ये गलत है, कुछ भी लिखा है. कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम को रिप्लेस करने का नहीं कोई भी एम है रिजीम थ्योरी का. नेक्स्ट है मेजर पावर्स रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू दिस मैकेनिज्म. नहीं, ऐसा भी नहीं है. रिजीम थ्योरी इज नॉट यूज फॉर सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, फिर है दे हैव बीन डिफाइंड बाय प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स, रूल्स. हाँ, दिस इज करेक्ट. ठीक है, so the correct answer will be 1 and 4 only, so that is the second option. Now we'll do the match the followings. तो इसमें क्या है, वी हैव टू मैच द इंटरनेशनल थ्योरीज विद, अच्छा उनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, उससे वी हैव टू मैच देम. तो फर्स्ट क्या है, रियलिज्म. रियलिज्म क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिव गेन होता है. हाँ, दिस इज करेक्ट. ठीक है, रियलिज्म इनसाइड आउटसाइड अप्रोच या ये सब नहीं है, ये दिस विल कम इन क्लासिकल रियलिज्म एंड स्ट्रक्चरल रियलिज्म. रियलिज्म का बेसिक मतलब क्या है, रिलेटिव गेन, थ्योरी ऑफ रिलेटिव गेन, नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, ये सब कंसेप्ट कम अंडर रियलिज्म. नेक्स्ट है लिबरलिज्म. लिबरलिज्म में क्या होता है, सब लोगों का बढ़िया हो जाए, पूरे वर्ल्ड का, एवरीवन फ्लरिशेस. ठीक है, सो दिस इज द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट गेन. ठीक है, सो डी का रहेगा सेकंड, सी का रहेगा रियलिज्म फर्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल रियलिज्म. ठीक है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म में क्या रहेगा, आउटसाइड इन अप्रोच रहेगा, बिकॉज इट गिव्स इक्वल वेटेज टू बोथ इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज द एक्टर्स. ठीक है, और क्लासिकल रियलिज्म में क्या रहेगा, इनसाइड आउट अप्रोच. इसमें प्राइमरली जो एक्टर्स, इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, उन्हीं पे लीडरशिप जो होती है बेसिकली, इट इज़ ओनली बेस्ड अपॉन द लीडरशिप, क्लासिकल रियलिज्म. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर्स फॉर दीज विल बी, इसके लिए थर्ड रहेगा एंड इसके लिए फोर्थ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है. Match the following question. We have to match the authors with their corresponding जो भी concepts उन्होंने दिए हैं उससे. ठीक है, so first of all Robert Cox. So Robert Cox had talked about the interaction between social forces, forms of states and world orders. ठीक है, तो दिस ए का सेकंड हो जाएगा. नेक्स्ट है रॉबर्ट कोहेन. रॉबर्ट कोहेन ने बताया था द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिजीम्स ऑन कोऑपरेशन, सो द फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. फिर अलेक्जेंडर वेंट. सो ही वॉज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कॉलर. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडिया जो भी रहेगा वो उनका था. 3. फिर है रॉब वॉकर. रॉब वॉकर हैड टॉक्ड अबाउट द एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूटी एंड रेपिटेशन इन सोशल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, उन्होंने यही एम्फेसाइज किया था दैट देयर इज कंटिन्यूटी एंड रेपिटेशन इन सोशल स्ट्रक्चर्स, सो इनका फोर्थ ऑप्शन है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का ये अगेन. Who among the following political thinkers reformulated the principle of realism given by Morgenthau for a feminist perspective? तो this is very simple question. एन जे टिकनर ने करा था ये. ठीक है, उन्होंने वो ये 6 पॉइंट्स जो मॉर्गनथाउ ने दिए थे, शी ऑल्सो गिव देम. ठीक है, नेक्स्ट
अक्टूबर 2022 का है। हु रोट न्यू colonialism द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये देखिए, ये वाला सवाल बहुत 3 बार आ चुका है। अभी अभी मैं पढ़ रही हूँ, उसी में 3 बार आ चुका है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस प्रॉपरली। दिस वॉज रिटन बाय क्वामे नक्रुमा। नेक्स्ट है the who is the author of this book? Why is there no international theory? So this was written by Martin White. ठीक है, this is again a simple question. Next है, which event led George Bush to transform his foreign policy into one of global power projection and interventionism? तो ये कब हुआ था? वही 9/11 के बाद में। ठीक है, उसके बाद में ही started the global war on terrorism under which they entered अफगानिस्तान। ठीक है, 2001 में अफगानिस्तान में आ गए थे ना यूएसए आर्मी। ठीक है, सो द आंसर इज सेकेंड, 11 September. So that is all for this video. Please like, share and subscribe to our channel if you found this video helpful. Please also follow our telegram channel. जो सारे मेरे PDFs हैं, those are uploaded on the telegram channel. And please comment on our videos regarding any content suggestions which you have, or if you found the videos helpful. So thank you.